Hello children, now we are going to study supplementary reading. In that you have the first chapter, that is the Lost Child. Now Lost Child is written by Mulk Raj Anand. He is an Indian classic writer. Now here it is a small story of a small boy. He is going with his father in a fair, and in that fair he loses his parents and suddenly he gets scared, and this shows the insecurity of the child towards their parents. Now, before starting this chapter, first acknowledge the whole scenario, or we can say the time when this the topic must be written or the story must be written by Raj Anand. Now this is back round about 40-50 years back. Now at that time India had lot of fairs and everything, and parents used to be conserved and they used to take their children to different type of fair near the village, and there when there is a festival of spring, so this way जो मेला बोलते हैं, मेले में ऐसे लेके जा रहे थे उसके फादर, और वो बच्चा वहाँ पे खो जाता है. तो ये पूरी कहानी बस वो जर्नी की है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है तब उसकी फीलिंग क्या होती है, और जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, जब वो गुम हो जाता है मेले में, तब उसकी फीलिंग क्या है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, the writer has given an introduction about the festival of spring, or we can say how the festival is going on, or we can say what is this the whole scene. Right now, see, it was a festival of spring. From the wintry shades of narrow lands and alley emerged a galley called humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in a bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with his life and laughter. Now see, here we have given a lot of things the writer has told. First, it is a festival of spring. Now festival of spring, again from the wintry shade, that means winter has been over, spring has started, and emerge a galley clad human. Now galley clad humanity means there are lot of people, they are wearing different type of colorful dress, and they have all gathered. Some are walking, some are they are riding a horse, some are sitting, some are see bullock cart, they are say riding. ऐसे सिचुएशन, कुछ बैलगाड़ी में है, घोड़ा गाड़ी में है, कोई चल के जा रहा है, ठीक है. और वहाँ पे एक छोटा सा वन लिटिल बॉय इज देयर, और वो क्या कर रहा है, अपने पापा के पैरों के पीछे से, मतलब बोलने का मतलब है वो बड़ी खुशी होके अपने पापा के साथ हाथ पकड़ के वो चल रहा है. ओके, नाउ see the dialogue. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. अब देखो नेचुरली मेला है तो नेचुरली टॉयज़ वगैरह की शॉप होंगी, ये बच्चा उसे देखता है, और नेचुरली आप देखना कभी छोटे बच्चों को आपने गौर किया हो तो वो ऐसी सारी चीज़ें देखे वो अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं. तो यहाँ पे भी ये बच्चा वही कर रहा है, ही इज सीइंग दैट टॉयज एंड एवरीथिंग, एंड दिस वे ही इज लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है. So whenever he is lagging behind, his parents calls him, come child come. The parents उसे बुला रहे हैं कि चलो बेटा चलो, हम आगे जाना है. Now further he sees all the different type of toys and he wants the toy. So he asks his parents, I want that toy, and his father looks at him red-eyed. Now it is a familiar trait, right? आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे जब अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं, दे कीप ऑन आस्किंग ना, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो, और जब वो देखते हैं या उनके मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मेरे को ये लेके दो, तो रिएक्शन सेम ही होता है सभी पेरेंट्स का कि ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, या वो गुस्से में देखेंगे या फिर आपको मना कर देंगे. तो यहाँ भी इस बच्चे के साथ यही हो रहा है, और ही इज now little bit sad. Right now what happens,
he sees different type of mustard seeds, flower seeds, the field, वहाँ पे सरसों की खेती वगैरह की गई है और ये सारी चीज़ें वो देखता है। अभी राइटर यहाँ पे आपको पूरा नेचर का सीन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विद द आई ऑफ अ बॉय, कि क्या क्या नेचर में कितनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें वो नोटिस कर रहा है। सी देयर आर ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, देयर आर black bees, insects, okay, and whole nature is very beautiful, very calm. See, ये सारी चीज़ें आप अगर गांव वगैरह विलेज में अगर जाते हो, there you can feel all this thing. Okay, in the town we are very unlucky to have all this scene, but when you visit village places you can observe all this thing. So writer is trying to attract the readers by making minute detail whatever the child is saying. Now see, again as he sees all this thing, he is lagging behind, and his parents again they are calling, come child, come. Okay, now there are a lot of flowers and everything. He again sees the dove and he is attracted towards it. Okay, so now again all this is happening. The parents, they are suggesting this boy to walk on the footpath. Okay, now further when they move, now see, now this boy is walking on the footpath and he can see lot of crowd on the footpath, and he is confused with this world, that a lot of people walking, what they are doing, and slowly he comes near a sweet seller, right? And here there are lot of sweets, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फी है, जलेबी है, और naturally ये बच्चा देखे, again he is attracted by all the sweets. Now sweets in Indian, sweets are very colorful, they are very decorative with silver and golden this paper, so it is very mouth watering. So ये बच्चा उसे देखता है और जैसे ही वो बर्फी को देखता है तो उसके मन में लालच आता है कि I should eat the बर्फी. So he slowly says, I want the बर्फी. Now see, he has been with his parents, कब से वो मेले में चला आ रहा है और अभी तक उसको एक ही जवाब मिल रहा है, no, right? So now he doesn't dares also to ask his parents. So what he does, without making any big noise, he slowly he is not waiting for the answer of the parents. He knows that what will be the answer of his parents. So he slowly धीरे से वो अपने आप से बोलता है कि I want that बर्फी. Now see, और आगे जाते हैं. There is a flower seller, there are garland of गुलमोहर, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स है और ये सारी चीज़ें हैं. ओके, अगेन ही मर्मर्स, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. बड़ा खूबसूरत सा वहाँ पे फूल के हार वगैरह बना के रखे होते हैं. सो ही इज़ अगेन अट्रैक्टेड टू ऑल दिस थिंग, और फिर वो डिमांड करता है, पर वो जानता है, बच्चा जानता है कि उसके पेरेंट्स अगेन उसे रेफ्यूज़ करेंगे कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट दिस फ्लावर्स. नाउ slowly he moves forward, and there is a balloon man. And then this balloon man has been holding a pole in which there are yellow, red, green and purple balloons flying there. And naturally this child is carried away with this rainbow, different type of this balloons and everything. And he sees some toys also. There is he works further, ठीक है, और वो अभी जानता है कि इसके पेरेंट्स को कुछ लेके देने वाले हैं नहीं, ठीक है, इसलिए वो धीरे 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 देखते देखते वो वहाँ से आगे जाता. एंड देयर ही सीज अ स्नेक चार्म. इफ़ यू रिमेंबर इन इंडिया बहुत सारा स्नेक चार्मर या सपेरा वगैरह बहुत हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है. तो फिर यहाँ पे भी एक स्नेक चार्मर है और वो अपनी बीन बजा के वो स्नेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. एंड दैट ब्यूटीफुल म्यूजिक इज ही इज़ अट्रैक्टेड विद दैट म्यूजिक. And see how the writer has used the adjective to describe this music. What he says,
The music stole into its invisible ears, like the gentle dripping of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded फर्दर. उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे कहीं भी खड़े रहने के लिए या ये करने के लिए, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है. नाउ ही स्टिल देयर एंड ही सेज राउंड अबाउट, यानी वहाँ पे मेला है तो सारे डिफरेंट राइड्स वगैरह भी थी, वो जो चक्री या गोल है ओके जो मोशन से चल रही थी, तो कुछ हंस रहे थे, कोई चिल्ला रहे थे. नाउ this time he wants to sit in this cart round merry-go-round. So what he says, he boldly requests his father. What he requests is, I want to go the roundabout. Please father, please mother. But suddenly when he turns around, he sees that there is nobody around him. There is no sign of his parents. Now the little boy, he is in a shock, right? Because his mother and father are not around him. He stood there. He is now in a fear. He is very afraid. वो छोटा सा बच्चा है, अब उसके मम्मी पापा दिख नहीं रहे थे, तो अब सोचो कि वो उसका सिचुएशन क्या होगी. नाउ टीयर्स आर रोलिंग डाउन हिज आइज. वो पूरा रोने लगता है. एंड ही इज इन अ पैनिक सिचुएशन. ही इज क्राइंग मदर फादर. ही वॉक्स इन द नोइंग डायरेक्शन, वॉट एवर डायरेक्शन ही कैन फाइंड, एंड ही फाइंड्स दैट ही इज सर्चिंग द क्लोथ्स, राइट, what his mother and father had worn. Now he was wearing see, he wailed. What he is wailing, mother father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. दिस सोच दैट कि जो बच्चा है वो उसके मम्मी पापा को ढूंढ रहा है और वो उस भीड़ में देखने की कोशिश कर रहा है कि उसके मदर फादर कहाँ हैं. ओके, नाउ ही इज रनिंग हियर एंड दैट. ओके, नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं और वहाँ पे ये छोटा सा बच्चा ये अपने मदर फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है. ओके, एंड व्हाट हैपन्स नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल द क्राउड बिकम वेरी थिक. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and healthy shoulders. Now this poor child, it is struggling to thrust away between their feet, but knocked to and fro by the brutal movements. अब भीड़ है और मंदिर के पास और ज़्यादा भीड़ थी और वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके मदर फादर उसे मिल नहीं रहे और वो धक्का मुक्की में वो बच्चा आगे नहीं जा पा रहा है. वो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को कि वो कैसे वो आगे बढ़े या पीछे आ सके. ओके, सी व्हाट हैपन्स नाउ. हाउ डिड यू गेट दैट चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ अ मास. द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. Now here a man comes और वो देखते हैं कि ये बच्चा बेचारा गुम गया है, तो उससे वो पूछते हैं कि बेटा आप कौन हो, आपके मम्मी पापा कौन हैं, कहाँ हैं. और ये बच्चा और ज़ोर से रोने लगता है और वो उसका एक ही डायलॉग है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. राइट, अब सी नाउ यहाँ से आपका पूरा जो सिचुएशन है मदर और फादर का, देखो कैसे वो सिचुएशन पूरा का पूरा बदलने लगता है. आपने देखा कि पूरी जगह पे वो हर दुकान पे या हर चीज़ें, फ्लावर शॉप पे, फूल की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, हर चीज़ में वो क्या चाहता था कि उस जो भी चीज़ वो देखता था, टॉय हो तो टॉय लेके दो, मुझे फूल हो तो फूल लेके दो, मुझे मिठाई लेके दो, मुझे बर्फ़ी लेके दो, मुझे खिलौने लेके दो. राइट, अब पूरा का जो पूरा मेला है वो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है. अब यहाँ पे बच्चा अकेला है. राइट, और इस अकेलेपन में उसे क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो चीज़ क्या थी, मदर एंड फादर. नाउ सी व्हाट हैपन्स. The person or the man, he is trying to console this boy. He is trying to make this child happy. अब ये जो
मैन या ये जो भी आदमी उसे मिला था, अंकल उसे मिले थे, वो उसको कॉन्सल करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि उसको हर एक दुकान पे लेके जा रहे थे। मिठाई की दुकान पे, बेटा बर्फ़ी खाओगे? तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मुझे बर्फ़ी नहीं खानी, मुझे क्या चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। खिलौने लेके दे रहे हैं तो वो बच्चा क्या बोला है, नहीं मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। अब वो सांप जो स्नेक चार्मर था वहाँ पे लेके जाते हैं, सब जगह वो जिस जिस जगह वो गया था वो हर एक जगह लेके जाते हैं। बट नाउ the boy wants one thing. What he wants, I want my mother, I want my father. अब यहाँ पे ये पूरी जो स्टोरी है मुकुल राज आनंद की यहाँ पे ख़त्म होती है, और राइटर हमें यही कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तो हम बड़े उनसे अनरिस्पेक्टफुल चीज़ों से हम समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते, मेरे साथ वैसा करते हैं, मुझे ये लेके नहीं देते, वो लेके नहीं देते। पर जब पेरेंट्स नहीं होते हैं साथ में तो उनको उनकी लाइफ में एक ही चीज़ होती है, वो होती है पेरेंट्स। और पेरेंट्स की जगह दुनिया में कोई चीज़ आप नहीं ले सकती। आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप चीज़ें देखते हो, किसी को गाड़ी का शौक होगा, टीवी होगा, मोबाइल होगा, गेम्स होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी वर्थलेस है इफ़ यू डोंट हैव योर पेरेंट्स विथ यू। सो दिस स्मॉल चैप्टर makes you realize that how important parents are for you.